Good morning, children. So I am going to start the next topic, that is the blood groups, the ABO grouping. You all are familiar that human being has got four different kind of blood groups: the blood group A, B, AB, and O. Now, why these blood groups are there? Then we also studied there are some people who got blood group positive and some got blood group in negative. Now, what are these positive and negative stand for? So what will happen if these blood groups are mixed together, or if positive one is given negative or negative one is given positive kind of blood group, etc., etc. So all those things we are going to discuss here. So human being, four kind of blood groups actually depend on the three type, or rather two type of antigens. The two types of antigens. There are two kinds of antigen protein present. Antigen proteins located on RBC. ठीक है, जैसे ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, how will you differentiate me from any other people because I got this particular uniform? You know ना, हमारे स्कूल का ब्लू कलर का यूनिफॉर्म इज अ वेरी पिक्यूलियर. यू विल नॉट फाइंड दिस कलर ऑफ यूनिफॉर्म विद एनीवन एल्स. ब्लू कलर तो बहुतों क्या है, सारा रेलवे ब्लू शर्ट ही पहन करके आता है. बहुत सारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दे आर वेयरिंग ब्लू शर्ट, बट आवर ब्लू शर्ट इज डिफरेंट विद द वाइट डॉट्स ऑन दिस. ठीक है, सो out of so many people are standing or wearing the blue dresses, you can easily locate, even if you are not seeing my face, or even if you are not knowing me. पहली बार आया हूँ आपने स्कूल में और आपने देखा होता कि अच्छा दिस इज द यूनिफॉर्म ऑफ द सेंट पॉल. सो एंड यू सी वो एलन वाले होते हैं ना, एलन टीचर्स, वो वेर एवर यू गो दे विल ऑलवेज वेयर दैट शर्ट एंड दैट पैंट्स ओनली. ठीक है, तो वो बेस्ट प्राइस में भी जाते हैं तो वही पहने हुए मिल जाते हैं. दे गो टू द मार्केट ऑल्सो देयर यू विल फाइंड. सो इट सीम्स इट इज दे हैव बीन टोल्ड कि आपको ये आपका बेंचमार्क रखना. बढ़िया है, पैसे बच गए हैं, कोई दूसरे कपड़े सिलाने नहीं. Anyway, that is something good. That is not a thing to be discussed in the classroom. But what I want to say is that when there is a uniform, it is an identity. Similarly, the RBC has a certain kind of antigen protein, that is their identity. Now, antigen protein can be of two types. Either antigen protein can be, दो तरह के antigen proteins हैं. Antigen proteins can be of two types. Either it is A or it is B. If it is A, the blood group is A. ठीक है, इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखता हूँ एंटीजन प्रोटीन, ये तो आपको मिल ही गया. फिर यहाँ पे लिख देते हैं एंटीबॉडीज. ठीक है, और फिर यहाँ डिस्कस करेंगे कैन रिसीव फ्रॉम and can donate to. ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन प्रोटीन ए है, तो एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में मिल रहे हैं, दैट इज बी. एंड नाउ यू सी एंटीबॉडीज आई हैव मेंशन्ड इन द स्मॉल लेटर जस्ट टू डिफरेंशिएट दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर टू डिफरेंट थिंग. ठीक है, सो इफ द ब्लड ग्रुप इज ए, एंटीबॉडी विल बी बी. एंटीजन इज ए, ब्लड ग्रुप इज ए, एंटीजन इज ए, एंटीबॉडी विल बी बी. ठीक है, नाउ इसके भी दो टाइप होते हैं. हम टेबल पूरी बनाएंगे या अधूरी अधूरी टेकिंग करके समझ नहीं आती, तो अभी तो मैं केवल इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ. दिस विल राइट लिटिल. एंड इन द एंटीजन ब्लड ग्रुप इज बी, एंटीजन इज बी एंड एंटीबॉडी इज बी. एंड इफ ब्लड ग्रुप इज ओ, तो क्या होगा, न तो उसमें ए टाइप का ब्लड न तो उसमें ए टाइप का एंटीजन मिल रहा है, न बी टाइप का मिल रहा है. Nil, no antigen present again, and both antibodies are present. And if the blood group is AB, both antigens are present and no antigen is present. Now, this thing should be clear to you.
जिस टाइप का एंटीजन होता है उसका विपरीत टाइप का एंटीबॉडी मिलता है। What do the antibody do? Anti means against, body means anything which is working against anything. What it is working against? It is working against antigen. So antibody B will work against antigen B. पर क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजन E टाइप का B टाइप का है ही नहीं, so they can stay together. This combination can stay together. If such a person is given a small amount of antibody blood group B, so these antibodies will coagulate them. Antibody B cannot tolerate antigen B. तो अगर आपने एंटीजन B दे दिया किसी को, the person who is having blood group A should have antigen A. If you are giving such a person the blood group A की जगह हम उसको B दे देंगे तो उसकी बॉडी में क्या चल जाएंगे, एंटीजन B पहुंच जाएंगे. When the antigen B is there, antibody B will coagulate antigen B and उसके ब्लड का क्या हो जाएगा, आपने एक कटोरी में थोड़ा दूध लेना है, सबके घर में दूध मिल जाते हैं, और उसके अंदर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप्स आपको नींबू का रस डाल देना है. नींबू नहीं मिले तो विनेगर डाल देना, जैसे विनेगर नहीं मिलेगा नींबू तो मिल जाएगा, और अगर ये भी नहीं है तो कोई से भी खट्टा एसिड डाल देना. ठीक है. व्हाट यू विल सी, योर मिल्क विल क्या हो जाएगा, मिल्क का फट जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, कडल हो जाएगा. ठीक है. वो जो कडलिंग ऑफ मिल्क इज देयर, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोगुलेशन. उसके लिए बायो में क्या वर्ड है, कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं दे विल फॉर्म लम्प्स, एंड फिर वो लम्प्स इससे बड़े बड़े हो जाते हैं दैट दे कैन नॉट फ्लो इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड दे विल जैम देम. वो ब्लड कैपिलरीज को क्या करेंगे, जैम कर देंगे एंड द ब्लड फ्लो विल स्टॉप एंड वी मे डाई और वी मे हैव सर्टन पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, दैट पार्ट पैरालिसिस. ठीक है. सो इट शुड नेवर बी डन एंड दैट इज वाई एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कार्लस्टीन. तो वो उन्होंने क्या, पहले क्या होता था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, लड़ाइयाँ होती थी, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई, उससे पहले भी, एंड दे यूज्ड टू गिव द ब्लड ऑफ, कभी भेड़ का खून चढ़ा दिया, किसी गाय का खून चढ़ा दिया. मैनी ऑफ दे टू डाई. थोड़ा बहुत बच जाते थे तो डॉक्टर की मेहरबानी, मर गए भगवान की इच्छा, है ना. सीधी सी बात यही, अगर बच्चा पास हो गया तो भाई बच्चा बहुत मेहनत करता, फेल हो गया तो मास्टर पढ़ाते ही नहीं. सिंपल सी बात है, हमारे देश में तो ऐसे ही लॉजिक चलता है. तो यही तो क्या हुआ ना कि वो ऐसे दे देते थे, बट लेटर ऑन साइंटिस्ट कार्लस्टीन बोलते हैं, उसने सबसे पहले ये पता करा कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड, सर्टेन पर्सन्स ब्लड आर एक्सेप्टेड, सर्टेन पर्सन्स ब्लड आर नॉट एक्सेप्टेड. तो ही हैड डन इज, किसने मेरे लैपटॉप को कंट्रोल किया है बाहर से, छेड़छाड़ कर रहा है, ये अंशी होगा. नो सर. ओके. तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये पहली बार पता पड़ा. देन वी केम टू नो दैट देयर आर एंटीजेंस, है ना. तो इफ दैट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दीज 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द 2 टाइप ऑफ एंटीजन. If antigen is A, blood group is A. If antigen is B, blood group is B. If both of them are not there in the blood, वो बिना यूनिफॉर्म वाले हैं, कई सारे ऐसे स्कूल होते हैं ना, सरकारी स्कूल, गलियों के स्कूल, बिल्कुल मेरे मतलब वहाँ जब पीपल डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अफोर्डेबिलिटी दैट द गवर्नमेंट सेज कि भाई लेट देम कम इन एनी ड्रेस, बट डोंट स्टॉप देम बेयरली बिकॉज दे आर नॉट कमिंग इन यूनिफॉर्म. So in such a school, anybody can go and sit. Who will come to know whether he is off? Unless attendance is taken, unless ID is there, or unless some other reason is there, or unless only few children are there at the moment, the teachers can recognize. और भी हमारे जैसा स्कूल हो, 3,500 बच्चे हो, where if one child come from outside with
यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वी कैन एट वंस रिकॉग्नाइज। तो ये बिना यूनिफॉर्म वाले हैं, इनके पास अपनी आईडी नहीं है, सो दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज। एंड फिर क्या होगा, इसमें कोई सा भी बाहर का खून डाल दो, चाहे ए वाला डाल दो चाहे बी वाला डाल दो, कोगुलेशन विल बी देयर। एंड इन द ब्लड ग्रुप इज ए बी, इसमें ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ओ का तो कुछ है ही नहीं, सो दे कैन रिसीव एनी काइंड ऑफ ब्लड। और ए में तो ले ही सकते हैं, समझ गए ना। ए वाला क्या ब्लड लेगा, केवल ए ही लेगा। बी वाला क्या लेगा, केवल बी लेगा। ओ वाला क्या लेगा, केवल ओ लेगा। अच्छा, ओ वाला इसको भी दे सकता, ओ वाला इसको भी दे सकता। ज़्यादा खिचड़ी हो गई क्या? Is it too much? See, blood group A can receive blood from A and O. B can receive from B and O. O can receive only from O, और कोई लाइन नहीं आ रही है। And AB can receive from AB, from O, from B and from A. तो ये तो हो गए यूनिवर्सल डोनर, और O सबको दे रहा है, उसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, तो ये तो हो गए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट नहीं डोनर, और ये हो गई यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी इज रेसिपिएंट, ओ इज डोनर, ये अपने अपने स्वार्थी हैं, मीन है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ओके। तो ये अपन को समझ आया। ब्लड ग्रुप A can receive blood. You can see in the book also, it is written here in this table. Blood group A can receive, blood group A है, एंटीजन A है, एंटीबॉडी B है, और किससे ले रहा है ब्लड, वो A से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। B वाला है, दैट इज हैविंग एंटीजन B, एंटीबॉडी उसमें A टाइप का है, एंड होम यू कैन गेट द ब्लड फ्रॉम B and O। AB जिसका ब्लड ग्रुप है, दैट एंटीजन आर A as well as B and no antibodies are present there, and they can receive blood from AB as well as from A, from B and O, सबसे ले। O वाला है, उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, सो एंटीबॉडीज बोथ आर देयर, दैट इज एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B, है ना। अब यहाँ पे इसने कैपिटल में लिखे, आप इसको स्मॉल में लिखिए। एंड डोनर जो है, दे कैन गिव टू एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज द ब्लड ग्रुप। द ब्लड ग्रुप इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन प्रोटीन। नाउ अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ। In spite of knowing about the blood group, number of cases जो है they used to die if the blood group, even right type of blood group is given है, ठीक है। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि there is another type of factor which is affecting person, that is called RH factor. RH factor was first time recognized in the rhesus monkey. rhesus monkey, हाँ, rhesus monkey के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया था, दैट इज व्हाई द RH टर्म इज गिवन टू इट, ठीक है। इफ RH इज प्रेजेंट तो हम इसको RH पॉजिटिव करेंगे, इफ RH प्रूफ फैक्ट एंटीजन इज एब्सेंट तो इसको नेगेटिव। इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव। इफ इट इज एब्सेंट we will call it. So now RH is different thing and blood groups are different thing, but since both the things are necessary, दोनों में से भी कोई एक भी चीज गलत दे दी, then the person can die, person can face severe problem। हम किसको देंगे ब्लड? A person with the healthy amount of blood group, blood cannot be given blood। हम किसको दे रहे हैं ब्लड? We are giving blood to only those people जो पहले ही अधमरे हो रहे हैं, जिनके पास पहले ही ब्लड कम है, और उसको आपने उल्टा खून और दे दिया गलत वाला, तो उसको मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, once the blood is given wrong type, then you cannot do anything also। और क्लॉट्स तो बनी गई, अब उसको थोड़ी डिजॉल्व कर सकते हैं, अंदर मिक्सी थोड़ी डालेंगे कि यार चलो दही तो बनी गया, इसकी छाछ ही बना लेते, लस्सी बना लेते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोगुलेशन इज कोगुलेशन, ठीक है, देन नथिंग कैन बी डन, एंड दैट इज व्हाई इसके लिए हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया। तो अब अपन पूरा एक टेबल बना,
प्लस RH फैक्टर। तो हमारे पास ये हो गए A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ABO एंटीजन, इसमें क्या है? A है, A, B, B, A and B, A and B and nil and nil. RH एंटीजन, पॉजिटिव वाले में प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। एंटीबॉडीज ABOK, इसमें B बोलो A क्या हाथ, इसमें नेल, इसमें बोथ A and B, A and B। अब किससे लेंगे खून? रिसीव फ्रॉम A पॉजिटिव किससे ले सकता है? A पॉजिटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से ले सकता है, O पॉजिटिव से ले सकता है एंड O नेगेटिव से। ये किससे लेगा? A नेगेटिव एंड O नेगेटिव। दिस इज B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ये किससे लेगा? B नेगेटिव से एंड O नेगेटिव। AB पॉजिटिव किससे लेगा? सबसे लेगा, फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। ये किससे लेगा? फ्रॉम ऑल नेगेटिव्स। ठीक है, ये किससे लेंगे? O पॉजिटिव से लेंगे एंड O नेगेटिव। ये किससे लेंगे? ओनली फ्रॉम O नेगेटिव। अब कैन डोनेट टू A पॉजिटिव किसको देगा? A पॉजिटिव को देगा एंड AB पॉजिटिव। A नेगेटिव किसको देगा? A नेगेटिव को देगा, A पॉजिटिव को देगा, AB नेगेटिव को देगा एंड AB पॉजिटिव को देगा। ये किसको देगा? B पॉजिटिव को देगा एंड AB पॉजिटिव। This can receive from B negative, मतलब can give it from to B negative, B positive, AB negative and AB positive। ये किसको देगा? AB positive only to AB positive। ये किसको देंगे? AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। O पॉजिटिव किसको देगा? टू ऑल पॉजिटिव्स एंड किसको देंगे? टू ऑल ब्लड ग्रुप्स। ये लो साहब, रट लो।
हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। वही कोगुलेशन जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, दैट इज कैसे वो चलिए ये कोगुलेशन एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, वो हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, कल करेंगे, आज छोड़ देते हैं इसको। अभी हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्या था वो, हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पैराग्राफ आपको दिख रहा है 18.1.3.2 RH फैक्टर्स। तो मैं पढ़ता हूँ इसको, मैं पढ़ता हूँ इसको, कहाँ से पढ़ता हूँ, छोड़िए, मैं आवर डिलीवरी डे। क्या होता है ना, देखिए शादियाँ तो होती हैं, शादी होते समय कौन ब्लड ग्रुप वगैरह देखता है ना। सपोज अ वुमन इज हैविंग ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड अ मैन इज हैविंग ब्लड ग्रुप नेगेटिव, कुछ ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न और अदर, नहीं उल्टा बोलते हैं, एक औरत है, अ वुमन इज हैविंग ब्लड ग्रुप नेगेटिव, हाँ एक औरत है, ये औरत बना ली, ज़्यादा कचड़े में नहीं पड़ना, छोटी बना ली। इसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव, एंड इनका जो पति है मूंछों वाला, वो जो पति है वो RH पॉजिटिव है। बाद उठाएंगे तो सुन रहे हैं ना। अभी क्या है, इन्होंने विवाह किया और उसके पश्चात दिस लेडी इज बिकम प्रेग्नेंट, होना ही है। और यहाँ जो फीटस है, दैट फीटस जो है वो RH पॉजिटिव, मदर क्या है RH नेगेटिव, बिकॉज फादर वॉज पॉजिटिव, देर इज अ क्वाइट अ बिग परसेंटेज ऑफ, ज़्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा परसेंटेज ये है कि बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो जाए। नॉर्मली द मदर्स ब्लड एंड द फीटल ब्लड आर रिमेन सेपरेटेड, वो ऐसे तो जुड़े हुए नहीं होते एक दूसरे के साथ में, इंटरडिजिटेड रहते, सो देर इज नो चांस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ब्लड। ऐसा कुछ नहीं होता कि इधर का ब्लड उधर जाएगा, उधर का ब्लड इधर आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ, जब ब्लड कैपिलरीज ऑफ फीटस एज वेल एज मदर बोथ आर रप्चर्ड, दोनों ही ब्लड कैपिलरीज टूटती है, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी अ सर्टन अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी इंटरमिक्स, 2 मिनट है ना, देर मे बी पॉसिबिलिटी दैट अ सर्टन अमाउंट ऑफ ब्लड में इंटरमिक्स। अब जैसे ही इसके मदर के अंदर RH पॉजिटिव वाला ब्लड गया, थोड़ा सा मान लीजिए 3, 4, 10 ml ब्लड, ठीक है, कोई ज़्यादा पूरी बॉटल से चढ़ नहीं, तो क्या होगा, द फीटल ब्लड जो है RH पॉजिटिव ब्लड वो मदर के अंदर चले गए। जैसे ही मदर रिसीव्स RH पॉजिटिव ब्लड, देन क्या होगा, द मदर विल स्टार्ट मेकिंग anti-RH एंटीजन, एंटीबॉडीज। वो anti-RH एंटीबॉडीज बनाकर रख लेगी, बट टू आवर गुड लक अभी कोई और दूसरा ब्लड तो दे ही नहीं रहा उसका RH पॉजिटिव वाला, सो इट विल बी नॉट हार्मिंग नीदर टू द मदर नॉट टू द फीटस। पहला बच्चा सुरक्षित जन्म ले लेगा। नाउ इफ दैट लेडी वॉज इग्नोरेंट, उसको पता नहीं हो, और शी मस्ट हैव गॉट टू सच डॉक्टर्स जिसने केयर नहीं किया हो, देन व्हाट हैपन ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी एंड अगेन सपोज शी हैज गॉट दिस काइंड ऑफ ब्लड,
तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि व्हेन द फीटल एंड मैटरनल ब्लड आर एक्सचेंज द आरबीसी रिमेन आउट बट द प्लाज्मा तो एंटर्स नो एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। एंटी-RH एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा तो जाएगा ना उधर, तो प्लाज्मा चला गया एंड व्हेन एंटी-RH एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा सेकेंड बेबी के ब्लड में चले जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? दे विल स्टार्ट किलिंग द RH positive type of blood cells. As a result, what will happen? The fetal RBCs will be killed, and this will going on and on. तो क्या होगा? It may be possible that the child may die much before the birth. और इस तरह की डेथ को हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये इटैलिक्स में, ये वाला वर्ड देखना, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलाइसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस। एक नंबर का क्वेश्चन दूंगा, मतलब अब तो फाइनल भी आएगा ये पेपर, बिकॉज वी आर स्टडिंग फाइनल्स पेपर, तब तक तुम्हें थोड़ी याद रहेगा, है ना? तो तुम पढ़ के रख लेना, मुझे भी याद नहीं रहेगा, है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, गुड डे।